Hello friends, we will continue with the chapter First War of Independence 1857. In first part we have completed 15 questions. Now we will continue with the rest. Question 16. Mention any three measures which point to the policy of social discrimination followed by the British in India. 3 points which point to the policy of social discrimination followed by British in India are: British considered themselves racially superior to Indians. They were rude and arrogant towards Indians. All higher posts of employment were reserved for British irrespective of their performance. अंग्रेज़ अपने आप को भारतीयों से ऊंची नस्ल का मानते थे। भारतीयों के साथ उनका व्यवहार बहुत ही अभिमान से भरा हुआ और अशिष्ट होता था। अंग्रेज़ों का परफॉर्मेंस काम में भले ही कैसा हो, लेकिन ऊंचे पद सारे उनके लिए ही रखे जाते थे। Question 17. Give example to show that British exploited resources of India. India was forced to export raw materials like raw cotton and raw silk, which British needed urgently at cheaper rates. This shows British exploited resources of India. हमें ये बताना है कि अंग्रेज़ किस तरह से भारत के साधनों का फ़ायदा उठाते थे। अंग्रेज़ों को सिल्क या कॉटन बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए रहता था, वो रॉ सिल्क और रॉ कॉटन वो भारत से मंगाते थे, वो भी बहुत ही सस्ते दामों पर। तो इससे पता चलता है कि वे कैसे इंडिया के साधनों का फ़ायदा उठाते थे। क्वेश्चन 18. गिव 2 ग्रीवियंसेस ऑफ द पेजेंट्री अगेंस्ट द ब्रिटिश. ऐसी 2 शिकायतें बतानी हैं जो गरीब किसानों को अंग्रेज़ों के खिलाफ थी। The peasants were discontent with the official land revenue policy which led to loss of their land. It was peasantry which had to bear heavy burden of exorbitant taxes to provide money for the trade and profits of the company, the cost of administration and the wars of British expansion in India. अंग्रेज़ों की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी या ज़मीन पे जो कर या टैक्स लगता था, उससे गरीब किसान बहुत ही नाखुश थे, क्योंकि वो कर भरने के लिए उन्हें ज़मींदार से लोन या कर्ज़ लेना पड़ता था और वो कर्ज़ न चुका पाने की सूरत में वो अपने ज़मीन से भी हाथ धो बैठते थे। और दूसरा ये है कि अंग्रेज़ों के जो भी खर्चे थे, उनका सारा बोझ किसानों से टैक्स वसूल करके ही पूरा किया जाता था। ऐसे व्यापार के लिए, राज्य चलाने के लिए या लड़ाइयाँ जो अंग्रेज़ अपना राज्य भारत में बढ़ाने के लिए करते थे, इन सभी के खर्चे का बोझ किसानों पर ही था। क्वेश्चन 19. What did the British do to reduce the landed aristocracy to poverty? The landed aristocracy, which included talukdars and territory landlords, were deprived of their estates. According to the provisions of Inam Commission 1852, 20,000 estates were confiscated when landlords failed to produce evidence like title deeds by which they held land. These confiscated lands were sold by public auction to the highest bidders. Hence, this drove landed aristocracy to poverty. अंग्रेज़ों ने रईस जागीरदार, जिसमें तालुकदार और स्थानीय लैंडलॉर्ड आते थे, उनकी ज़मीनें हथिया ली। 1852 के इनाम कमीशन के हिसाब से 20,000 एस्टेट्स अंग्रेज़ों ने हड़प कर दी। अगर ज़मींदार कुछ पेपर नहीं दिखा पा रहे, लाइक टाइटल डीड नहीं दिखा पा रहे कि वे उस ज़मीन के मालिक हैं, तो उनकी ज़मीन की नीलामी कर दी जाती थी और इस तरह रईस जागीरदार भी गरीब हो गए। क्वेश्चन 20. इन व्हाट वे did the General Service Enlistment Act disregard the feelings of the Indian troops? किस तरह से जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट के हिसाब से भारतीय सैनिकों की भावनाओं को नज़रअंदाज किया गया? According to the traditional belief, it was a taboo for Brahmin to cross the seas. The British Parliament passed the General Service Enlistment Act in 1856.
As per this act, Indian soldiers could be sent overseas on duty. This act did not take into account the sentiment of Indian soldiers. The Brahmin soldiers saw in this a danger to their caste. This led to feeling of resentment among them. पारंपरिक विश्वास के हिसाब से ब्राह्मण को समुद्र पार करके विदेश जाना निषेध था या मना था उनके लिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1856 में एक जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पास किया या कानून पास किया। उसके हिसाब से भारतीय सैनिकों को विदेश समुद्र पार करके ड्यूटी पे भेजा जा सकता था। तो यहाँ पर उन्होंने भारतीय सैनिकों की भावनाओं के बारे में नहीं सोचा। ब्राह्मण सोल्जरों के हिसाब से यह उनके जाति के लिए एक खतरा था और उन्हें इस बात की नाराज़गी और गुस्सा था। Question 21. Mention any two grievances harbored by the Indian soldiers which created an atmosphere favorable to the first war of independence. भारतीय सैनिकों के ऐसी दो शिकायतें बतानी हैं जिनकी वजह से आज़ादी की पहली लड़ाई का माहौल बनने में मदद हुई। Irrespective of their performance, all higher positions in the employment were reserved for the British. Indians could not rise above the rank of a Subedar. In 1856, company's troops comprised of 2,33,000 Indians and 45,322 British soldiers. This made it easier for large number of Indian soldiers to take up arms against the British. अंग्रेज़ों का काम में भले ही कैसा भी परफॉर्मेंस हो, लेकिन ऊंचे पद सारे उनके लिए रखे जाते थे। भारतीय सैनिक सूबेदार के पद से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते थे। ये एक पॉइंट हो गई। 1856 में कंपनी के पास जो ट्रूप्स थे, जो सैनिक थे, उसमें 2,33,000 भारतीय थे और इसके मुकाबले अंग्रेज़ी सैनिक 45,322 थे। भारतीय सैनिकों की संख्या ज़्यादा होने के कारण उनका अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाना आसान हो गया। Question 22. What impact did the defeat of the British in the first Afghan war have on the morale of the Indian soldiers? पहली अफ़गान वॉर में अंग्रेज़ हार गए थे, तो इसका असर भारतीय सैनिकों के हौसले पे क्या पड़ा? It broke the myth that British were invincible. It further revealed to the Indian soldiers that British army could be defeated by the determined Indian army. ये गलत धारणा समाप्त हो गई कि अंग्रेज़ों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और भारतीय सैनिकों को ये भी समझ में आ गया कि अगर वो पक्का इरादा कर लें तो अंग्रेज़ी सैनिकों को आसानी से हरा सकते हैं। Question 23. What was the immediate cause of the first war of independence? In 1856, authorities decided to replace the old-fashioned musket by the new Enfield rifle. The loading process of Enfield rifle involved bringing up the cartridge to the mouth and biting off the top greased paper with the mouth. It was believed that greased cartridge had fat of cow, pig and cow. Cow is sacred to Hindus and pig is taboo to Muslims. So both Hindus and Muslim soldiers refused to use these cartridges and staged an uprising when they were forced to use them. आज़ादी की पहली लड़ाई का तत्काल कारण क्या था? 1856 में अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया कि पुरानी मस्केट राइफ़ल की जगह नई एनफील्ड राइफ़ल लाई जाए। तो उसकी जो लोडिंग प्रोसेस थी, उसमें कारतूस को जो भरना था, तो वो कारतूस को लोड करते समय उसे उस पर लगा हुआ एक चिकनाई से भरा हुआ पेपर मुंह से तोड़ना पड़ता था और ऐसा माना जाता था कि पेपर पे लगी हुई चर्बी गाय या सूअर की है। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए वर्जित है। तो दोनों हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने उस कारतूस को
इस्तेमाल करने से मना कर दिया। जब जबरन व कारतूस उन्हें इस्तेमाल करने के लिए कहा गया तो उन्होंने बगावत कर दी। According to the syllabus given in the textbook, only causes political, socio-religious, economic and military and consequences will be tested. The events, however, need to be mentioned in order to maintain continuity for more comprehensive understanding. तो जो कॉजेज़ हैं मेनली और उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनके नतीजे आपके एग्ज़ाम में आएंगे। बाकी सब चीज़ें आपको चैप्टर को समझने में मदद मिलेगी उससे, तो आप पढ़ सकते हो। वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स। लेट अस हैव जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। Causes of the First War of Independence. There were 5 main causes: political, socio-religious, economic, military and immediate cause. Political causes included first, policy of expansion by outright wars, subsidiary alliance, doctrine of lapse, and on the pretext of alleged misrule. Second, disrespect shown to Bahadur Shah Zafar. Third, treatment given to Nana Sahib. And fourth, absentee sovereignty of the British. All this we have covered in earlier questions. I will be telling you in detail whatever we have not covered. Socio-religious causes included interference with social customs, apprehensions about modern innovations, policy of racial discrimination, corruption in administration, oppression of the poor, activities of the missionaries, fears regarding Western education, taxing of religious places, and law of property. इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम्स में हमने देखा था जब अंग्रेज़ों ने सती और विडो रीमैरिज का कानून पास किया तो लोगों को ऐसे लग रहा था कि ये उनके धार्मिक रीति रिवाजों के खिलाफ है। एप्रीहेंशंस अबाउट मॉडर्न इनोवेशन, भारतीयों को लगता था कि रेलवे कंपार्टमेंट में ऊंची और नीची जाति के लोगों को एक साथ बिठा के अंग्रेज़ उनका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं और टेलीग्राफ पोल्स जो बना रहे हैं वो अंग्रेज़ों की खिलाफत करने वाले लोगों को वहाँ पर फांसी लगाने के लिए बनाए जा रहे हैं। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हमने किया है। करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो अमीर लोग थे वो पैसे खिला के बच जाते थे और फंस जाते थे गरीब लोग। ऑपरेशन ऑफ द पुअर, मतलब कानून ऐसे था कि जो ज़मींदार थे या अमीर लोग थे वो गरीबों पे जुल्म कर सकते थे। एक्टिविटीज़ ऑफ मिशनरी 1813 के बाद बढ़ गई तो लोगों को ये लगने लगा कि सरकार मिशनरीज़ की मदद उनको क्रिश्चियन बनाने के लिए कर रही है। फियर्स रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन में भी ऐसा ही है कि पहले जो पंडित और मौलवी पढ़ाई करवाते थे अब ये वेस्टर्न एजुकेशन से उनको लगता था कि सरकार उनके बच्चों को क्रिश्चियन बनाना चाहती थी। और टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस, पहले रिलीजियस प्लेसेस मंदिर व मस्जिद पे कोई टैक्स नहीं लगता था, अब सरकार ने उन पे टैक्स लगाना चालू किया था। तो लोग ये मान रहे थे कि अंग्रेज़ उनके धर्म को नीचा दिखा रहे हैं। द रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट ऑफ 1850 ने हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी को बदल दिया और उसके हिसाब से अगर किसी ने अपना धर्म चेंज किया है तो भी उसे ख़ानदानी जायदाद पे हक रहेगा। तो इसको ऐसे देखा गया कि धर्म बदली करने के लिए एक तरह से लोगों को रिश्वत दी जा रही है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉसेस। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ड्रेन ऑफ वेल्थ, डीके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स, इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पेजेंट्री, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स, poverty and famines, decline of landed aristocracy. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज में हमने देखा था कि अंग्रेज़ यहाँ से कच्चा माल जैसे रॉ सिल्क और रॉ कॉटन लेके जाते थे, वो भी सस्ते दामों पर। और ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है? अंग्रेज़ पहले सोना लेके आते थे और यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे, लेकिन बंगाल में जीत होने के बाद 1857 के बाद
वे यहाँ पर से ही जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसी से वो कच्चा माल खरीदते थे, और यहाँ का जो पैसा इंग्लैंड ट्रांसफ़र हो रहा था उसका फ़ायदा इंडियन लोगों को नहीं होता था। द ड्रेन ऑफ वेल्थ मीन्स द ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड फॉर विच Indians did not get any proportionate economic return, that is called drain of wealth. Decay of cottage industries and handicrafts का मतलब है यहाँ पर जो बना हुआ सिल्क और कॉटन था, अगर वो इंग्लैंड भेजा गया तो उस पर भारी टैक्स लगता था। वहाँ से आने वाले माल पे टैक्स बिल्कुल ना के बराबर था। तो यहाँ का वीविंग और स्पिनिंग की जो इंडस्ट्री थी, जो कपड़ा बुनने की इंडस्ट्री हज़ारों सालों से चल रही थी, वो लगभग बंद हो गई। कारीगरों की तकलीफ़ और बढ़ गई क्योंकि उनसे जो ख़रीदने वाले ज़मींदार और राजा महाराजा वगैरह थे, अब वो नहीं रहे। इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पेजेंट्री में हमने देखा था कि टैक्स का सारा बोझ गरीब किसानों के ऊपर था, तो इसकी वजह से वो और गरीब होते गए। ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जो लोकल शासक थे वे अपने संरक्षण में कुछ लोगों की मदद करते थे, जैसे कि कारीगर हैं, विद्वान हैं या प्रवचन करने वाले लोग हैं। तो जैसे वो लोग शासक नहीं रहे तो इनका काम भी चला गया। और जब अंग्रेज़ों ने राज्य अपने एरिया में इंडिया का राज्य बढ़ाते गए तो यहाँ के जो ऑफिसर्स थे उनको पद से हटा दिया गया, तो वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए या बेरोज़गार हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर्स। इंडिगो एक डाई है, कलर है। इसका अंग्रेज़ों को उन्हें बहुत ज़रूरत थी इसकी, और उन्हें उसमें से बहुत फ़ायदा होता था। तो वो यहाँ के किसानों को इंडिगो ही कल्टीवेट करने के लिए, इंडिगो की फसल करने के लिए ज़बरदस्ती करते थे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी फसल को नष्ट किया जाता था और उनकी भेड़ बकरियों को सज़ा के तौर पे ले लेते थे। पॉवर्टी एंड फेमाइन्स। अंग्रेज़ों के लोगों का फ़ायदा उठाने की वजह से या उनके हाई टैक्सेस की वजह से यहाँ का इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर काफ़ी बंद हो गया, तो लोग गरीब होते गए, पॉवर्टी बढ़ गई और यहाँ पर बहुत फेमाइन्स या सूखे पड़ने लगे। लोगों की तकलीफ़ें बढ़ रही थी। अंग्रेज़ों ने वो तकलीफ़ें दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। अगला पॉइंट है डिक्लाइन ऑफ लैंडेड अरिस्टोक्रेसी। तो हमने देखा कि जिसके पास अपने ज़मीन को प्रूव करने के कागज़ नहीं रहते थे तो अंग्रेज़ उसकी नीलामी करके उसकी ज़मीन हड़प कर लेते थे। तो इस तरह बड़े जागीरदार और ज़मींदार भी कम होने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है मिलिट्री कॉजेज़। फर्स्ट पॉइंट, इल ट्रीटमेंट ऑफ द इंडियन सोल्जर्स, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, लार्जर proportion of the Indians in British Army, bleak prospectus of promotions, deprivation of allowances, faulty distribution of troops, poor performance of the British troops, लोअर सैलरीज। इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स का मतलब है उसी पद वाले अंग्रेज़ी या हिंदुस्तानी सिपाही में बहुत भेदभाव होता था। यानी हिंदुस्तानी सैनिक या सिपाही को बहुत ही कम सैलरी, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था बहुत ही कम लेवल की होती थी। उन्हें अपने जाति के जो निशानियां रहती हैं जैसे पगड़ी, दाढ़ी वगैरह रखना अलाउड नहीं था। तो ये दिखाता है कि वे हिंदुस्तानियों की भावनाओं की कदर नहीं करते थे। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट के हिसाब से भारतीय सैनिकों को विदेश समुद्र पार भेजा जा सकता था, जबकि यह हिंदुस्तानी ब्राह्मणों के लिए वर्जित था। तो इससे पता चलता है कि वे उनकी भावनाओं की कदर नहीं करते थे। अंग्रेज़ी सेना में अंग्रेज़ी सैनिकों के मुकाबले भारतीय सैनिकों का नंबर या तादाद बहुत ज़्यादा था, तो ये उनके लिए एक एडवांटेज बन गया कि वो एक साथ मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठा सकते थे। ब्लीक प्रॉस्पेक्टस ऑफ प्रमोशंस। सारे ऊंचे पद अंग्रेज़ों के लिए रखे जाते थे और जो भारतीय सैनिक थे या सिपाही थे वो भले ही इंडियन शासक के में भले ही बड़े ऊंचे पद पे हों, पर अंग्रेज़ी सेना में उन्हें सूबेदार से ज़्यादा का पद नहीं मिलता था। तो इस तरह से उनके प्रमोशन के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर थे।
डिप्राइवेशन ऑफ अलाउंसेस। अंग्रेज़ जैसे अपना राज्य भारत में बढ़ाते गए तो सिपाहियों को अपने घरों से दूर के इलाकों में जाके काम करना पड़ता था, पर वो बगैर किसी एडिशनल भत्ते के। उन्हें एक फ्री पोस्टेज का हक था, वो भी बंद कर दिया गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स। भारत के जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे, दिल्ली, इलाहाबाद, वो हिंदुस्तानी सिपाहियों के हाथ में थे, क्योंकि अंग्रेज़ी सिपाही ज़्यादा बाहर से, इंडिया के बाहर से वॉर में बिज़ी थे। तो भारतीयों को ये महसूस हुआ कि भारत में अंग्रेज़ों का राज उनके आसरे पे है या उन पे निर्भर है, तो उन्होंने मौका देखकर वार करने का इरादा बनाया। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप्स। ब्रिटिश सैनिकों को काफ़ी जगह पे अफ़गान वॉर, पंजाब वॉर, क्राइमियन वॉर में हार का सामना करना पड़ा। तो सिपाहियों की ये गलतफहमी दूर हो गई कि अंग्रेज़ों को हराया नहीं जा सकता। तो उन्हें पता चल गया कि अगर पक्का इरादा करके साथ में लड़ा जाए तो अंग्रेज़ों को हराया जा सकता है। लोअर सैलरीज़। भारतीय सिपाहियों की सैलरी इतनी कम थी कि वो अपने घर बार का देखभाल भी बराबर से नहीं कर सकते थे, जबकि उसी पद वाले अंग्रेज़ी सिपाही की सैलरी उससे 8 गुना ज़्यादा थी। इमीडिएट कॉज या तत्काल कारण। एनफील्ड राइफल में एक कारतूस यूज़ होने लगा जिस पे गाय या सूअर के चर्बी वाला पेपर लगा रहता था और सिपाहियों को उसे मुंह से तोड़ के निकालना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों को यह मंजूर नहीं था और उन्होंने बगावत कर दी। ये जो सारे आंदोलन हो रहे थे, अंग्रेज़ों ने अपनी ताकत से उन्हें दबा तो दिया, लेकिन यहाँ पर एक रिवाज बन गया कि अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ आवाज़ उठानी है। So we will end the chapter here. Our next video will be on natural vegetation chapter of geography. Thank you for watching and keep subscribing and sharing it.